So, hello everyone, welcome to our channel of Campus Varta. Today we are doing a very special podcast with one of our most esteemed guests. And I would request you to watch this video till the end because you're going to get so much insight about the frauds, about the scams that are going on. And that is not only going on in Tier 1 cities, but Tier 2, Tier 3, and worldwide. And we have with us Purnendu Ghosh, who is the founder of One Roof Solution. He is a very accomplished legal consultant and counselor, and he specializes in providing effective solutions to all the individuals who are affected by cybercrime, online scams, financial institution, financial fraud, and everything. And he has experience of over 20 years in property insurance, healthcare, and publishing of multiple multinational companies. He also has a background in legal process outsourcing for an esteemed organization. So today we have invited him because he's working on ground with a lot of individuals, a lot of companies, a lot of people, not only in India but internationally as well, who are becoming a part of scam and that is going on worldwide and looting people of their hard-earned money. So welcome, Purnendu sir. How are you? Hello. Hello, good morning, everyone. Thanks, Komal. Hello, can you hear me? Yeah, I can hear. First of all, Komal, thanks to brief introduction to me, and happy Makar Sankranti to all of you. Komal, really, this podcast is really very important for me, and there are so many questions. People are really wanted to know exactly what type of MLM it's going on, and they are cheating with the people, innocent people, and they are looting the money from the different innocent peoples. So yes, ask me whatever you have, any questions, any doubt. I will try to answer all these things. Yes, sir, definitely. So, sir, you have been working on ground with people, you have your own channel, and you try to create awareness via that channel as well. So, what kind of or what type of fraud in MLM do you come across? Like Yes, how they are attracting people, what's their I process? think there's some problem. Yes, Komal, actually, uh, I am working since last 3 years, and there are so many people just contacted me, right? They all are victim for the QNet, and as well as different MLM scams. So in my channel, people are really contacting me, and they're really looking for the some advice and some solution how to deal this type of situations. And they have lost their huge money, right, in different type of MLM scams. Hmm. One of the biggest MLM who is running in India, and they are looting the people, and Okay. most of the army persons are affected with that MLM company, and they are just trying to reach the people with the trusted people, right? तो अब वो लोग क्या करते हैं, that persons, and आप हमारे आपके सोसाइटी से ही होते हैं, राइट? एंड वो लोग बोलते हैं, दे आर जस्ट ड्रीमिंग देम कि यस यू कैन अर्न मिलियंस एंड मिलियंस रुपीज इफ यू आर ज्वाइनिंग दिस एमएलएम कंपनी। तो ऐसी कुछ चीजें होती है, कोमल। Hmm. मैंने देखा है, आई एम ऑब्जर्विंग लास्ट सिंस 3 इयर्स। लोगों को ना दो तरह की चीजें होती है। फर्स्ट वन इज द नीड एंड सेकंड इज द ग्रीड, राइट? तो जो नीडी होते हैं उनको लगता है कि अगर मान लो कोई उन्हीं का ट्रस्ट वर्दी पर्सन अगर उसको एक सपने ड्रीम ड्रीम दिखा रहा है इन दैट टाइप कि यस, इफ यू आर इन्वेस्टेड दिस मनी तो यू कैन अर्न millions and millions rupees within a few weeks or few months or few years, right? तो ऐसे केसेस में वो बहुत जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं और अपने पैसे लुटा देते हैं। तो ये इस टाइप की चीजें चल रही हैं मार्केट में, और ऑल ओवर द इंडिया में ऐसे चल रही है चीजें। So, sir, होता है क्या है कि जब ऐसी चीजें होती हैं तो लोग पहले तो ट्रस्ट ही नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद देम, राइट? एंड जब उनको पता चलता है कि नाउ दे हैव बीन चीटेड बाय समवन एल्स, उसके बाद उनको ये समझ में नहीं आता है कि व्हाट एग्जैक्टली डू, राइट? व्हाट इज द प्रोसेस टू डील विद दिस टाइप ऑफ सीन। उनको समझ ही नहीं आता बिकॉज दे लॉस्ट देयर ह्यूज मनी।
तो मेरा हमेशा से ये सॉल्यूशन रहा है लोगों के लिए। मैं एक ट्राई करता हूँ सॉल्यूशन देने की, कि अगर ऐसा कुछ होता है किसी के भी साथ, चाहे वो जॉब वाला बंदा हो, या एक बिजनेसमैन हो, या आर्मी पीपल हो, या कोई भी हो, हाउस वाइफ भी हो सकती है, हाँ, कॉलेज गर्ल्स भी हो सकती है, तो इन दैट केस उनको मैं यही सजेस्ट करता हूँ, वही एडवाइस करता हूँ इन माय वीडियो ऑल्सो, कि आप पुलिस की हेल्प लें। हाँ, पुलिस इज द ओनली सॉल्यूशन। अगर आपको लगता है और आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ इंफॉर्मेशन छुपाई गई है, आपको बताया नहीं गया, तो इन दैट केस आपको सीधे पुलिस के पास जाना जरूरी है। तो ऐसे करके ही आगे बढ़ता है। ओके। तो सर आपने अभी बोला कि इसके अंदर फ्रॉड में हम देखते हैं कि बच्चे हो गए, कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, बिजनेस वो जॉब वाले हो गए, कोई भी हो गया, बट इसमें आर्मी वाले लोग कैसे फिट इन हो रहे हैं? मतलब वो, अगर आप एक बार थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करो कि अगर जो स्कैम चल रहा है तो उसका छोटा सा भी प्रोसेस क्या है, कि लोगों को पता तो लगे कि अच्छा ये लोग इस प्रोसेस से चल रहे हैं, तो अगर कोई कांटेक्ट करे तो उनको पता रहे। प्लस ये आर्मी जैसी एक, क्या कह लो, नोबल इंडस्ट्री कह लो, या फिर एक बहुत स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री कह लो, उसमें वो लोग कैसे इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? कोमल, जब मैं इसको कर रहा था लास्ट 3 इयर्स से, जब मैं इसके अंदर घुसा, तो उस वक्त मुझे ये लगा, मतलब आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि आर्मी में इतने सारे लोग कैसे एट ए टाइम इसमें इस ट्रैप में फंस रहे हैं। बहुत आर्मी वालों से मेरी बात होती है, इनफैक्ट कल भी मेरी बात हुई, आज भी हुई सुबह से, और डिफरेंट डिफरेंट आर्मी पीपल मुझे कांटेक्ट करते हैं। और उसमें ऐसा नहीं है कि वो आर्मी लेवल के कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, एयरफोर्स, नेवी, उसके लोग होते हैं। तो अब आपको, मतलब सच में ये बड़ा सरप्राइजिंग सा है। तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, बात करी मैंने, तो मुझे ये पता चला कि होता क्या है, वो लोग आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल अलग होते हैं। आर्मी के लोग होते हैं जो आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल, जो आउटर ऑफ द, मतलब अलग जगह पे क्या चल रहा है उनको नहीं पता होता, दे आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो होता क्या है कि उनको एक सेकंड इनकम का कोई अगर लालच दिखाता है कि भाई आप आर्मी में जॉब कर रहे हैं, आपका एक सेकंड इनकम भी स्टार्ट हो जाएगा, और उन्हीं के आर्मी वाले ही लोग, हालांकि वो भी ट्रैप हुआ रहता है, तो उसको समझ नहीं आती, वो किसी दूसरे आर्मी वाले को बताता है। और आर्मी में एक चीज आप देखो कोमल, बहुत इंटरेस्टिंग है ये बात। आर्मी में होता है क्या है कि आर्मी वाले के ऊपर बहुत ट्रस्ट करता है। यू गॉट माई पॉइंट? तो उसमें होता क्या है कि अगर उसने बता दिया कि हाँ मैं कर रहा हूं, तो तुम भी कर सकते हो, तो फिर उसको कुछ सोचने की जरूरत होती नहीं है, और ऐसे करके वो इसमें ट्रैप हो जाता है। और इसमें हर एक लेवल पे, मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि सिविलियन कोई आउटर वर्ल्ड से आकर दूसरे जगह से आके उनको ट्रैप नहीं कर सकता। आर्मी वाले बंदा ही आर्मी वाले को ट्रैप करता है इसमें। हाँ, कुछ एक केसेस में मुझे ये भी दिखने को मिला, एमएलएम फ्रॉड जहां पे हुआ है, जो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, क्यूनेट कह लो, या और भी बहुत सारे हैं। तो उसमें होता क्या है कि उनके जो रिलेटिव होते हैं या उनके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं जो कि आर्मी में नहीं होते, वो लोग उनको ट्रैप कर लेते हैं। ओके। अब क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ट्रैप, ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ ये ट्रैप वर्ड यूज? दैट मीन्स कि देखो, आर्मी का बंदा हो या कोई भी बंदा हो, चाहे वो सैलरी क्लास हो, सैलरीड क्लास हो, या एक बिजनेसमैन हो, वो ट्रैप कैसे हो जाता है? तो पैसे, अब यहाँ पे सबसे पहले चीज आती है पैसा। ट्रैप मतलब अगर आपने मुझसे पैसे मांगे, आपने मुझे कन्विंस कर लिया, मैंने एक बार में उठा के पैसे आपको दे दिए क्योंकि मेरे सेविंग में पड़े हुए थे, राइट? लेकिन अगर मेरे पास पैसे ही नहीं होंगे तो मैं ट्रैप ही नहीं होऊंगा, कोई कितना भी मुझे समझाए। और हम्म। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही एक आर्मी वाला दूसरे को समझाता है कि भाई हम बिजनेस कर रहे हैं और आप भी इसमें आ जाओ, आप बहुत पैसे कमाओगे, तो उसको कुछ पूछना नहीं होता है, तो वो सिर्फ एक ही बात बोलता है कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है जितना आप मांग रहे हैं, कि बिजनेस में पैसे लगाया जाता है, मेरे पास नहीं है। यहां से शुरू होता है बैंक लोन फ्रॉड। ओके। समझ रहे हो कैसे लिंक कैसे बनता है? यहां से शुरू होता है बैंक लोन फ्रॉड। अब उस बंदे के पास तो पैसे नहीं है, अब हम्म। अगले ने बोला अरे चिंता करने वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें लोन दिला दूंगा। अब लोन की एलिजिबिलिटी नहीं है, फिर भी उसको लोन मिल जा रहा है। तो इस तरह करके ये चीजें आगे बढ़ती है।
तो बेसिकली जितने भी विक्टिम्स होते हैं, चाहे वो किसी तरह का हो, आप ये कह लो जो आपका चिट फंड कंपनीज होती हैं, या इस तरह से एमएलएम कंपनीज होती हैं, हाँ, या क्रिप्टो करेंसी वाला हो गया, या ये डिजिटल एरेस्ट जो होते हैं, इसमें एक ही चीज आती है। अगर आप इसको बहुत माइन्यूटली अगर मॉनिटर करोगे या इसको एनालाइज करोगे, इसमें सिर्फ एक चीज आती है कि उस बंदे के पास सेविंग में बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे और उन्होंने एट ए टाइम दे दिया उठा के। हम्म। ठीक है, अगर नहीं पड़े थे तो अगला बंदा उसको लोन करा दे रहा है। हम्म। और है ना? लोन तो इसमें बैंक ये वगैरह भी इन्वॉल्व है सारे। मैटर ऐसे ही चलता है। इसमें हाँ बैंक, जी, हाँ जी, राइट, यही मैं बोल रहा कि अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो तो डेफिनेटली आपका क्रेडिट स्कोर भी शायद उनके पास होता ही है, बिकॉज कंपनीज के पास, बैंक्स के हूँ, पास सब कुछ आपकी होता है। डिटेल्स ही रहती हैं, तो वो आपका इजीली अप्रूवल के लिए भी कर देते हैं। राइट, राइट, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये पूरा नेक्सस है एमएलएम कंपनी का, लोन एजेंट का और बैंक एम्प्लॉइज। ये सारे सारे बैंक एम्प्लॉय नहीं, उसमें से कुछ एक मिले होते हैं, आपके डेटा को शेयर करते हैं और आपका लोन बड़ी इजीली डिसबर्स हो जाता है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है तो भी हो जाता है। लेकिन जब पेमेंट की बात आती है तो विक्टिम को ही करना पड़ता है। उस वक्त ये लगता है कि चलो भाई लोन मिल गया, राइट। और हमने बिजनेस में पैसे लगा दिए। लेकिन वो क्या बिजनेस है? कुछ भी नहीं है। अब मुझे बताइए कि कोई भी आम आदमी हमारे देश में, क्या वो 1.5 लाख रुपए की घड़ी पहनेगा? क्या वो 2 लाख रुपए का डिनर सेट में खाना खाएगा? नहीं। हाँ, तो ये सारी चीजें कर रही है, क्यूनेट कर रही है, और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एमएलएम कंपनीज है। वो लोगों को किस तरह से फंसा रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मॉनिटर कर रही है, ऐसी बात नहीं है। हम्म। अभी लास्ट ईयर 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनके अकाउंट्स को सीज कर दिए क्यूनेट के। हाँ, इनके इनके दो जो ऑफिसेस चल रहे थे उसको बंद कर दिए, इनके बहुत सारे अकाउंट्स को सीज कर दिया। तो राजस्थान में अरेस्ट हो, तो ये सब चीजें हो रही है, ऐसी बात नहीं हो रही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है। लेकिन टिल दैट टाइम, मैं तो हमेशा अपने वीडियोस में भी बोलता हूँ, लोगों को एडवाइस भी देता हूँ कि आप विदाउट पुलिस हेल्प के आप कुछ नहीं कर सकते हो, पुलिस के पास आपको जाना ही पड़ेगा। राइट। तो मेरा बस यही है कि आप पुलिस से हेल्प लो। हम्म। तो सर अभी हम लोग जैसे काफी देर से एमएलएम कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। एक ब्रीफली मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके अकॉर्डिंग, मतलब ऑडियंस के लिए, कि एक एमएलएम है क्या। हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली चीज है, तो एक ब्रीफली अगर आप एक्सप्लेन करो कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, कि उसमें किस तरह का वो प्रोसेस रहता है, एक छोटे से उसमें आप बताओ कि एमएलएम है क्या, ताकि लोगों को एक रेफरेंस मिल जाए कि हम जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो किस तरह का बिजनेस है। हाँ, ये बताना जरूरी भी है। देखो, ये एमएलएम जो शुरुआत हुई थी बहुत साल पहले, एग्जैक्ट डेट वेट मुझे ईयर याद नहीं है। हुआ क्या था कि हम जैसे कोई सामान लेने जाते हैं दुकान में, दुकानदार हमें पैसे लेता हमसे और सामान दे देता है, उसमें उसके बहुत सारे हिडन चार्जेस जुड़े हुए होते हैं, राइट। हाँ, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो सामान जो 2 रुपए की होती है वो हमें 10 रुपए में पड़ती है और हम लेके चले आते हैं, राइट। एमएलएम शुरू हुआ था, ये हुआ था कि मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसमें क्या होता था, डायरेक्टली, डायरेक्ट, इसको एक तरह से बोलते हैं ना, डायरेक्ट सेल्स। तो मतलब कंपनी से कोई product निकला, वो एजेंट्स होते थे, एजेंट्स के थ्रू वो डायरेक्ट चले जाते। जैसे मैंने मान लो कि लिया एजेंसी, और हमने एक उस प्रोडक्ट का पैसे दिया, ठीक है। अब मैंने आपको भी ऐड किया उसके अंदर और बोला कि देखो, इसमें आपको जो रेट कंपनी ने फिक्स किया वही रेट पे आपको मिलेगा, बीच में कोई भी नहीं है, सेल्स का कोई भी बंदा नहीं है। तो वो आपने जोड़ा, और इसमें आपको ये होता है कि आप आगे भी अगर इस तरह जोड़ोगे, लोगों को जोड़ोगे मतलब बेचोगे, उनके प्रोडक्ट को बेचोगे, तो फिर आप इस तरह से आप कुछ कमीशन भी कमाओगे। सामान तो लिया ही लिया, साथ में आपको कमीशन भी मिलेगा। कंसेप्ट बुरा नहीं था, कंसेप्ट बिल्कुल सही था, ठीक है। वो मतलब पिरामिड बनती थी, एकदम से पिरामिड स्कीम की है, लेकिन वो बाद में तो बैन भी हो गई, क्योंकि उसमें ये हो गया कि वो पैसे का चलता था। लेकिन बाद में ये हुआ कि नहीं, पैसे नहीं, इसमें प्रोडक्ट डाल दिया जाए, ठीक है। तो मान लो, अगर आप प्रोडक्ट, सपोज करो आपने मुझे बोला कि हाँ जी, ये मैं कर रही हूँ, आप भी इसमें जुड़ जाओ, तो मैं बोलूंगा कि भाई मैं पैसे जो दूंगा इसके बदले में, तो आप बोलोगे इसके बदले में आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा जो कि मार्केट से सस्ता है, जो कि अगर आप दुकान में उसको लेने जाओगे तो वो आपको बहुत सस्ता मिलेगा, बिकॉज मैं डायरेक्ट डायरेक्ट इसको आपको बेच रही हूँ। और आप भी आगे बेचोगे तो आपको कमीशन भी मिलेगा, सेम प्रोडक्ट। तो ऐसी चीजें गलत नहीं थी, बहुत सारे लोग अच्छे से कर भी रहे हैं इसको।
यहाँ पे हो क्या गया, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं बार बार ये यूनिट का नाम ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने एजेंट्स को, मतलब शुरुआत कहां से हुई, गड़बड़ होने का, जो जो एक्चुअल गड़बड़ हो रहा है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग ठीक है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ भाई मैं आपको एक क्या कहते हैं वैक्यूम क्लीनर बेच रहा हूँ, राइट, और उसका रेट ये है, आपकी मर्जी हो खरीदिए, नहीं मर्जी हो मत खरीदिए। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है कि ये जो प्रॉब्लम, ये जो लोगों को फंसाते हैं, बोलते हैं कि बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस है, अब उनसे पैसे ले लेते हैं, उनको बताते नहीं है, इंफॉर्मेशन सारी छुपा ले जाते हैं वो, राइट, और उनको उनसे एक बहुत हेवी अमाउंट लेकर के, और ये भी नहीं बोलते कि क्या सामान खरीद रहे हैं। यहां से शुरू होती है प्रॉब्लम। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप देखोगे टेक्निकल टर्म में जो लॉ के टर्म में अगर देखोगे, तो ये सीधे सीधे 420 का केस बन रहा है, राइट, और इंफॉर्मेशन हाइड किया 34 सेक्शन 34 में, या अगर आपका मान लीजिए कि आपके पास ईमेल आना चाहिए, आपकी ईमेल आईडी कोई मैंने अगर फेक बना लिया, तो वो आईटी एक्ट में भी आ जा रहा है। तो इस तरह से करके चीजें ये लोग गलतियां नहीं, मतलब चालाकियां शुरू कर दिया लोगों ने करना, क्योंकि पता है कि अगर उसको रिटेल में सर, एक मिनट। बेचेंगे या बोल के बेचेंगे तो नहीं खरीदोगे ना आप, या आप बाहर का फॉरेन, तो क्या करोगे, तो कि एक वैक्यूम क्लीनर बेचना होगा, अब उसकी प्राइस कुछ है, तो वो अगर मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ भाई ये है, ये वैक्यूम क्लीनर है, इसका प्राइस ये है, क्या आपको खरीदना है, डायरेक्टली मैं बेच रहा हूँ आपको, कोई बीच में नहीं है, कोई रिटेल होलसेलर नहीं है, नथिंग, अगर आपकी मर्जी होगी आप खरीदोगे, नहीं मर्जी होगी आप नहीं खरीदोगे। लेकिन प्रॉब्लम शुरू कहां से होती है कि अगर मैं आपसे छुपा के आपको बोलता हूं कि नहीं ये इंटरनेशनल बिजनेस है और बहुत अच्छा आप अर्न करोगे, हाँ आप फॉरेन ट्रिप करोगे, बहुत सारी चीजें होंगी डिफरेंट डिफरेंट, अपने लाइफ में आपने ऐसा कभी देखा नहीं होगा, और ऐसे करके बहुत सारे ड्रीम आपके सामने एक क्रिएट करके, ठीक है, फोटोग्राफ्स दिखा करके अगर मैं ऐसे बोलता हूँ और बिना कुछ बोले हुए आप सिर्फ ट्रस्ट पे मुझे पैसे दे देते हो, तो वो क्लियर कट केस हो गया ना 420 का। मतलब चीजें मैंने आपसे छुपा ली सारी चीजें। यहां से शुरू होती है एमएलएम में जो फ्रॉड कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं लोग, लोग बताते नहीं है, और ये क्या होता है कि छोटे छोटे शहरों में इनोसेंट्स लोग होते हैं, सच में उनको पता नहीं होता। तो मैंने आपको शुरू में बोला था नीड और ग्रीड, तो जो नीडी है वो जब फंसते हैं तो मैं उनको ज्यादा उन पे दोष नहीं देता, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, ट्रस्ट करके अगर मान लो कोई किसी को पैसे दे देता है और फंस जाता है, तो ठीक है, उसको जरूरत है, उसको कहीं पे सैलरी उसकी कम है, वो सोचता है कुछ और साइड में कर ले। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग फंसते हैं जो कि नीड जिनको नहीं है, उनकी ग्रीड है कि चलो और पैसे कमा लेंगे, खूब जल्दी अमीर बन जाएंगे। बट आपको भी पता है, शायद उनको भी पता है, उन लोगों को भी, कि देयर इज नो शॉर्टकट, ठीक है, इतनी जल्दी अमीर बनने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। तो एमएलएम कंपनीज जितनी भी हैं जो भी इस तरह का फ्रॉड कर रही है, गवर्नमेंट उन पे बहुत क्लोज मॉनिटर कर रही है, पुलिस के पास जाएं अपनी शिकायत बताएं तो डेफिनेटली पुलिस उनको हेल्प करेगी। राइट। तो इन शॉर्ट एमएलएम टेक्निकली तो सही चीज है कि इसके अंदर हम हाँ, लोग मतलब प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट बेचने के लिए, बट जो फ्रॉड जिस चीज में चल रहा है कि पहली चीज के प्रोडक्ट जो होते हैं वो बहुत हैवी प्राइस पे बेच रहे हैं, बहुत हेवी प्राइस, कि राइट। मतलब बेच रहे हैं। एंड सेकंड, पता ही नहीं देखते प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो लोग, एक तरह से टेक्निकली ड्रीम बेच रहे हैं कि आपका मतलब जो एक फाइनेंसेस होता है, जो बंदे का कोर होता है, जो मेरा पेन पॉइंट कह लो, वो उस पे हिट करके वो बंदे को बड़े बड़े सपने दिखा के कहते हैं जी आपका मतलब हम लोग के साथ जुड़ जाओ तो हमारा ये रहेगा। तो इसके अंदर सर जैसे नीडी के लोग होते हैं वो डेफिनेटली फंसते हैं इसके अंदर, क्योंकि उनको भी पैसों की नीड होती है। बिकॉज आई वॉज रीडिंग अ केस ऑफ योर्स ओनली कि जिसके अंदर एक नीडी बच्चे को पकड़ के उसने अपना घर भी गिरवी रख दिया उसको पैसे के, बिकॉज उसको सपने बहुत ज्यादा दिखाए गए। एक ट्रस्टवर्दी बंदे ने उसको सपना दिखा दिया कि भैया ठीक है कोई नहीं, अपना घर भी वो कर दे, देखो पैसे हमें इतने देना है, 2 लाख रुपए जो भी अमाउंट था। तो वो उसने करके वो वहां पे फंस गया। ठीक है। तो वो बहुत करना मुश्किल हो जाता है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, मतलब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? गवर्नमेंट कह लो कि जो इस एमएलएम स्कीम्स को चलाने दे रही है, या जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व है, लोग इन्वॉल्व हैं जो इसको पुश कर रहे हैं, या फिर कौन इसके अंदर जो आपको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि इस तरह की स्कीम्स को आगे बढ़ाने के लिए? रिस्पॉन्सिबल अगर आप पूछोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मतलब आप अगर इसको रोकने की बात करोगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की है कि गवर्नमेंट इसको किसी तरह से रोके। लेकिन होता क्या है कि ये कंपनीज जो होती है ना, बड़ी चालाक होती हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, अगर मान लो आपकी एक कंपनी है, एमएलएम कंपनी है, ठीक है, आपने अपने रूल्स जो बना रखे हैं वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स बना रखे हैं, जो भी गवर्नमेंट को चाहिए उस तरह से आपने पूरे रूल्स सेट कर रखे हैं, राइट। अब आपको बिजनेस भी चाहिए, है ना, और बिजनेस भी चाहिए प्लस वो ऐसा करके चाहिए, एक तरह से छुपा के चाहिए। तो आप क्या करोगे, हम्म। अपने एजेंटों को पूरे मार्केट में फैला दोगे, पूरे हमारे समाज में फैल जाएंगे, हम्म। और उनको बोलोगे कि भैया तुम कुछ भी करो, कैसे भी करो, तुम बिजनेस लेके आओ। अब वो क्या करते हैं कि वो खुद तो फंसे होते हैं, खुद बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हुए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इनोसेंट लोगों को फंसाते हैं झूठ बोल करके। अब जब बंदा फंस जाता है, मान लो कि मैंने किसी को फंसा लिया झूठ बोल करके, और मैं किस, मान लो कि क्यूनेट है, उस अम्ब्रेला के नीचे मैं हूं, और मैं उन, क्यूनेट ने तो अपना रूल सही बना रखा है, बट मैंने क्या किया, झूठ बोल करके अगले को फंसा लिया। अगले को जब पता चला कि भाई वो फंस गया, उसने पैसे ऐसी किसी में लगा दिया और गलत जगह पे चला गया और गलत परचेजिंग हो गई जिसकी जरूरत नहीं थी, तो वो जो पुलिस कंप्लेन करेगा, पुलिस एफआईआर करेगा, वो यूनिट के ऊपर कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उनके रूल्स एकदम सही हैं। गॉट इट। वो एफआईआर हम्म। करेगा तो दैट मीन्स कि रिस्पॉन्सिबल या कंसर्न पर्सन वो बंदा हो गया। कहने का मतलब है कि आपस में ही दो लोग लड़ रहे हैं, और कंपनी, एमएलएम कंपनी, उसने अपना रूल सही कर सही रखा हुआ है और वो मजे कर रही है। तो यहां पे अगर देखा जाए, मान लो कि ए ने बी के ऊपर ट्रस्ट किया और बी को पैसे दे दिया, राइट। अब बी ने क्या किया कि उस पैसे को कहीं भी दिया हो, सामान परचेस करी हो, क्यूनेट से करी हो या किसी और जगह से, एमवे से करी हो, कहीं से भी करी हो, मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बट कहीं से भी करी हो। अब ए को तो पता ही नहीं है सामान क्या मिला है, या उसकी जरूरत है भी नहीं उसको, हम्म। राइट। तो अब जब ए को पता चला कि इस तरह से उसके साथ फ्रॉड हो गया, तो ए जो है वो बी के ऊपर एफआईआर करेगा। अगर वो कंपनी के ऊपर एफआईआर करता है, तो वो कहीं से भी वो एफआईआर पहले तो पुलिस लेगी ही नहीं, क्योंकि कंपनी अपना रूल दिखा देगी कि भैया मेरे ये रूल है, हम फॉलो कर रहे हैं इस रूल को। अब अगर मान लो बी ने ही गलत करा है तो वो रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे हम्म। कंपनियां बहुत शातिर गेम खेल रही है, बहुत शातिर। लेकिन धीरे धीरे अब वो एक्सपोज हो रही है, ऐसी बात नहीं है, बहुत जगहों पे एक्सपोज हो रही है, बहुत सारी चीजें सरकार ने पकड़ी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसमें बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है ऐसे एमएलएम कंपनीज का। हाँ, कंज्यूमर अफेयर्स जो है वो भी बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और एविडेंसेस कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि जब कंपनियां बड़ी हो जाती हैं, कहने का मतलब ये कानून में रह करके ही हम कानून के साथ खेल रहे हैं, तो इन कंपनियों के साथ ऐसे ही है। तो अब होता क्या है कि अगर ऐसे मान लो कि चीजें हो रही है, तो गवर्नमेंट को भी अगर इसको बंद करना है तो गवर्नमेंट के पास सफिशियंट प्रूफ होने चाहिए, एविडेंसेस होने चाहिए, जिससे कि जब वो उठा के इनको बाहर फेंके तो ये दोबारा घुस ना सके। तो वो सब चीजें चल रही हैं, बट उसमें टाइम लगेगा। राइट। तो इसका मतलब तो ये है कि कंपनी ने खुद को तो सेफ गार्ड कर लिया, बट जो ग्राउंड लेवल पे बंदे जो एक्चुअली उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए बिजनेस ला रहे हैं, उन लोगों ने उनको मतलब पूरा एक बलि का बकरा कह लो, वो बना रखा है, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि वो, उनको कुछ ना हो। अगर कल को किसी तरह से फ्रॉड पकड़ा जाता है, जी हमें तो नहीं पता, ये तो कंपनी बच्चे अपनी रूल से चला रहे हैं, जो भी उनके मेंबर्स हैं, ये अपना उनका चल रहा है। बट सर अगर इसलिए, क्योंकि ऑब्वियसली ग्राउंड लेवल पे काम चल रहा है, ये काफी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो ये विक्टिम्स को इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं है इस फ्रॉड के बारे में जो चल रहा है? बिकॉज साइबर फ्रॉड के लिए गवर्नमेंट भी स्प्रेड कर रही है अवेयरनेस वगैरह, बट ये एमएलएम फ्रॉड के लिए वो इतनी ओपनली, ऑनलाइन भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है जब तक कोई बंदा सर्च ना करे। तो इसके बारे में विक्टिम्स को इतना अवेयरनेस क्यों नहीं है? और कैसे इसको हम लोग स्प्रेड कर सकते हैं ताकि लोग कम इस चीज में, फ्रॉड में फंसे? अ, कोमल, ये क्वेश्चन सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवेयरनेस, देखो, होता क्या है कि अवेयर तो होता है बंदा, सब कुछ होता है, लेकिन जब उसका खुद का कजन ब्रदर हो गया, या उसका बचपन में जो जिस टीचर ने उसको पढ़ाया था वो टीचर हो गया, या मान लो कि 10 साल से किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसका बॉस हो गया, तो वो होता क्या है कि हमारे देश में तो आपको पता ही है कि हम
बहुत क्लोजली एक दूसरे से अगर किसी को ट्रस्ट करते हैं तो हम उसको सारी बातें बताते हैं, बहुत कुछ मतलब इसी पे ही चल रहा है दुनिया। तो अवेयर है, लेकिन अब होता क्या है कि उसका ट्रस्टवर्दी पर्सन जब उसको इस तरह से चीजें बताता है, तो कहने का मतलब है कि स्क्रीन, होता है क्या है कि हमारे देश में आज भी अगर कोई किसी को बता देता है कि भाई हम फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, वहां पे हमारा सेमिनार होगा, हाँ इस तरह से इवेंट्स होंगे, तो वो थोड़ा सा अगला जो जिसके सामने बोल रहा है उसके दिमाग में वो जो अवेयरनेस वाली बात होती है कंप्लीटली वो एक तरह से ढक जाती है। और वो सिर्फ उसी के बारे में सोच लगता है कि भाई हम लोग दोनों लोग दोनों ही बंदे हम सेम कंपनी में सेम करीब करीब सेम पैकेज पे ही काम कर रहे हैं। अगला बंदा ऐसा क्या कर रहा है कि भाई मतलब साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप कर रहा है, हाँ बड़े बड़े होटलों में खाना खा रहा है, तो ऐसा क्या कर रहा है। तो उसके दिमाग में वो जो अवेयरनेस वाली बातें होती है ना वो बिल्कुल छुप जाती है, बिल्कुल ढक जाती है, वो सिर्फ यही सोचने लगता है। कंपैरिजन कंपैरिजन। ठीक है, इसी तरह से मान लो मोहल्ले में या आर्मी का ही बात कर लो। अवेयर बहुत सारे लोग होते हैं, हाँ बहुत सारे लोग नहीं भी होते हैं अवेयर, बट मोस्ट ऑफ द पीपल अवेयरनेस होता है, लेकिन ट्रस्ट की वजह से वो तैयार हो जाते हैं इस तरह की चीजों में घुसने के लिए। लेकिन फिर से यहाँ पे आती ही बात पैसे की, है ना। सारी अवेयरनेस एक तरफ, पैसा मेन होता है, पैसा, क्योंकि ये सारा खेल तो मनी का ही है। तो यहां से मैंने फिर से बता रहा हूं, यहां से शुरू होता है बैंक लोन फ्रॉड। दैट मीन्स अगर सिंपल भाषा में बोला जाए कुमल इसको, तो आप ये देख लो कि अगर पैसे ही, हमारे देश का पैसा ही अगर विदेश में जा रहा है इस तरह से एक प्रोडक्ट दिखा करके, हाँ हमारे देश में क्या टाटा के एक से एक प्रोडक्ट होते हैं, हाँ डिफरेंट डिफरेंट रिलायंस के होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, उनको छोड़ करके अगर हम फॉरेन की प्रोडक्ट्स को जो जिसका की कोई कीमत नहीं है, अगर हमारे देश का पैसा इस तरह से बाहर जा रहा है, तो एक तरह से वो मनी लॉन्ड्रिंग हो गई ना। तो अगर आपको लोन राइट मैं राइट। इजीली दिला देता हूं, तो आप नाउ यू आर कैपेबल टू परचेज दिस आइटम। आपको पता भी नहीं है आइटम खरीदा क्या जा रहा है। तो यहां पे हम्म। अवेयरनेस सारी खत्म हो जाती है। उसको ये लगता है कि बस वो एंटरप्रेन्योर हो गया और वो अब बहुत लाखों रुपए कमाएगा इस बिजनेस से, और फिर इस तरह से चीजें शुरू हो जाती है। लेकिन जब उसको होश आता है तो समझ वो अपने आप को पाता है कि वो तो भैया 10 लाख रुपए लोन के अंदर डूब गया है वो, जिसका कि हेवी इंटरेस्ट पे करना पड़ा उसको। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट राइट। करती भी है टाइम टू टाइम अवेयर, लेकिन लोगों को ना वो समझ नहीं आती है, एक्चुअली समझ वाली बात हम्म। है ना। समझ वाली, उनको वो अवेयरनेस समझ ही नहीं आती है कि भाई क्या बोला क्या जा रहा है। वो जैसे ही अपने चाचा मामा ताऊ या कजन ब्रदर कजन सिस्टर, हाँ बॉस ऑफिस के बॉस, राइट, इस तरह के जब लोग आ जाते हैं सामने और डिस्कशन करते हैं, तो वो अवेयरनेस कहाँ कहीं के कहीं धरी रह जाती है। बेसिकली ये लोग अपनी, लगा लो ह्यूमन साइकोलॉजी से ही खेलते हैं कि ये लोग अपने नेटवर्क के लोगों को पकड़ना प्रेफर करते हैं कि जिन पे हम लोग को ऑलरेडी ट्रस्ट हो, ताकि वो फर्स्ट बैरियर हट जाए, कि हम लोग को वो ज्यादा कन्विंसिंग वाली चीज हट जाए, कि अगर वो मेरे को देखेंगे कि मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो वो मेरे से ऑलरेडी कन्विंस हो गए कि हाँ भी इन्होंने लाइव देख लिया कि मेरा लाइफस्टाइल अच्छा चल रहा है, चाहे जैसा भी चल रहा है, वो बैकएंड में उनको नहीं पता, तो वो बेच के इन बंदों को कन्विंस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कन्विंस कर आपने एक देते चीज हैं, और बोली कि हाँ, बोलिए बोलिए। कन्विंस कर देते हैं, एंड एज वेल एज इसमें ये देखो ना कि उनको ये दिखा देते हैं कि भैया तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें दिला रहे हैं, इसमें जो हाँ। इन्वेस्टमेंट होगा वो हम तुम्हें दिला रहे हैं पैसे, वो हम तुम्हें दिला रहे हैं, हम्म। बस वहां पे वो खत्म, फंस गया वो, राइट बंदा राइट। फंस गया उसमें। इसमें आपने ये चीज बोली थी अभी कि उनको लगता है कि हम तो एंटरप्रेन्योर बन गए, बट हम्म अब इसमें तो बिकॉज कंपनी उनके नेम पे नहीं है तो एंटरप्रेन्योर तो बन ही नहीं सकते टेक्निकली। मतलब, और एम आई मिसिंग अ पॉइंट कि वो एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीज में आई कहाँ से, बिकॉज दे आर नॉट एंटरप्रेन्योर एज फार एज आई नो इज अ पर्सन हु कैन टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन फॉर हिज और हर बिजनेसेस। हम्म बट इसके अंदर वो नहीं ले सकते, इसके अंदर तो सेट रूल से ही चलना है। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीज इसमें कहाँ से फिट इन हो रही है, वो उस तरह से कैसे पिच कर पा रहे हैं लोग। उनको बताया जाता है ना। हाँ अब इसमें ये देखो, सारे कंपनीज नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एक है जो कि इस तरह से कमिटमेंट करती है कि नाउ यू आर द एंटरप्रेन्योर एंड यू कैन टेक द डिसीजन एट योर ओन। वो ऐसे होता है, वो बोलते हैं कि आपको एक मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया, ठीक है, हालांकि वो कुछ नहीं होता है, इट्स अ रियली फुलिश थिंग। आपको एक हमने रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया, हाँ आपका ईमेल आईडी क्रिएट कर दी, इट्स ऑल अबाउट द वर्चुअल, राइट, यू आर द वर्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप।
हाँ, आपके पास प्रोडक्ट है जी, आपके पास एक टीम बन गई और आप उस टीम से काम ले रहे हो। नौ, आप एक कंपनी चला रहे हो। कहने का मतलब ये हो गया कि सपोज करो कोमल ने अगर अपने नीचे 10 लोगों को ऐड कर लिया, एंड दीज ऑल पीपल आर डूइंग वर्क अंडर योर ऑब्जर्वेशन, तो नाउ यू आर द एंटरप्रेन्योर। जबकि ऐसा है नहीं। ओके। जबकि ऐसा है नहीं। आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने दे दिया और आपको बोल दिया कि ठीक है, चिंता ना करो, अब आप एक कंपनी के मालिक हो गए हो, अब आप चीजों को बेचो, सेल करो, और जो उसके कमीशन होते हैं वो आपको मिलेगा। कि होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप का एक विजुअल उनके सामने इमेज बनाया जाता है, एक विजनरी बनाई जाती है और वर्चुअली बनाई जाती है, और उनको बोल दिया जाता है कि नाउ यू आर द एंटरप्रेन्योर एंड यू कैन लीड द टीम। आपके पास एक टीम होगी और आप यू कैन अर्न मनी इजीली। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। और इसमें होता क्या है कि जो बंदा है जिसको ट्रैप किया जाता है, उसको ना तीन चार लोग इस तरह से कन्विंस करते हैं और उसके सामने एक ऐसा इमेजिनरी एक वो दिखाते हैं कि वो सोचने का, वो जो भी आप जो बोला अवेयरनेस, डेफिनेटली बहुत पढ़ा लिखा बंदा होता है, हाँ बहुत सोशल होता है, लेकिन उस टाइम पे एट दैट मोमेंट उसका पूरा एक तरह से, जैसे मैं बोलता हूं कि उसका पूरा ब्रेन को हैक कर लिया जाता है। ये ऐसी ग्राउंड लेवल की मैं बात बता रहा हूं। मैं लोगों से इतनी बात करता हूं और वो मुझे बोलते हैं, अगर आप ही सोचो कि लेफ्टिनेंट कर्नल, राइट, आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल वो कैसे ट्रैप हो गया। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे ट्रैप करने वाला बंदा भी लेफ्टिनेंट कर्नल ही था। हाँ, वो जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड थे और जिन्होंने ट्रैप किया था वो दिल्ली में थे। हाँ, एक टाइम पे दोनों ने साथ में ट्रेनिंग करी थी और अ, दोस्ती हो गई उनकी, क्योंकि उन्होंने बोला तो वो उसमें, अब क्या उनको अवेयरनेस नहीं है? अवेयरनेस बिल्कुल थी उनके उनको। सिमिलर एक मेरे पास इंसिडेंस है जो कि बताना जरूरी है। एंड दैट पर्सन इज द डीजीएम इन वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी। हाँ, उनका कॉल आया और वो एक तरह से रो रहे थे। अब वो इस तरह से जो वीडियो कॉल करके, हाँ, उसमें वो ट्रैप हो गए। 9 सेकेंड का वीडियो था और उनसे वो मतलब पैसे मांगने लग गए और उन्होंने दे भी दिया। तो क्या वो अवेयर नहीं थे? अवेयरनेस थी उनको, बट वो द फ्रैक्शन ऑफ द टाइम, वो जो समय होता है उस टाइम पे ना, सच में मैं बता रहा हूं ये इतना, इसको मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया लोगों का, उस वक्त उनका बिल्कुल दिमाग चलना ही बंद हो जाता है। हम्म। बिकॉज वो किसी ट्रस्टेड बंदे के थ्रू सारे सोर्सेज आ रहे हैं। बिल्कुल। चीज का टेक मैनेजर है, बट उसको हम लोग शुगर कोट करके एंटरप्रेन्योरशिप में डाल रहे हैं क्योंकि आपके नीचे टीम काम कर रही बिल्कुल। है। तो इसके अंदर अगर विक्टिम्स, आई एम श्योर कि बहुत सारे विक्टिम्स होंगे इसके अंदर, बट वो पुलिस की हेल्प किस तरह से ले सकते हैं, या फिर वो डरते भी क्यों हैं लोग की, मतलब अगर हम लोग के साथ इतना गलत हुआ है एंड वी आर द विक्टिम, सो हम्म। वी वुड प्रेफर हम लोग पुलिस से कॉन्फिडेंटली जाके हेल्प लें। तो उसके अंदर क्या इशू आता है कि लोग क्यों नहीं जाते, और जाते हैं तो क्या पुलिस उनकी हेल्प कर नहीं सकती या पॉसिबिलिटी नहीं है? तो क्या इश्यूज आपने इसमें देखे इस केस में? हाँ, ये एक सच में इसमें तो मुझे भी बड़ा मतलब एक तरह से दुख होता है कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। हम्म। कोमल देखो, हमारे समाज में ना होता है क्या है कि वी ऑल आर मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, बिलोंग्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। सब लोग जॉब करने वाले होते हैं। अब जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनके सामने एक ही चीज होती है कि वो बस जॉब करे, सैलरी मिली, हाँ छुट्टियों में कहीं घूमने चले गए, अपने फैमिली के साथ खुश है। उनको ये पुलिस कोर्ट कचहरी से बचते हैं वो एक तरह से। हाँ, ये एक माइंड सेटअप है, इसको शायद हम चेंज नहीं कर सकते, ये एक माइंड सेटअप है। अब वो सोचते हैं कि यार पुलिस के पास जाएंगे, हाँ, फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा, वकील करनी पड़ेगी। तो उनके दिमाग में देर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, उनको लगता है कि बस इसमें ही हम उलझ के रह जाएंगे, फिर हम जॉब नहीं कर पाएंगे। तो ये एक ये रीजन भी है पुलिस के पास ना जाने का। दूसरा एक और रीजन है, वो ये है कि इन सब में खर्चा कितना बैठेगा, ऑलरेडी वो काफी सारे पैसे लुटा के बैठा हुआ है। तो एक हिडन कॉस्ट होती है। उनको लगता है कि भाई इसमें तो बहुत पैसा खर्चा होगा। ये भी एक रीजन हो गया। थर्ड जो होता है जिससे वो डरते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई हम जॉब कर रहे हैं, कल की डेट में अगर पुलिस हमारे ऑफिस आ गई, हाँ, हम्म। या हमारे घर आ गई वेरीफाई करने के लिए कि भाई जो विक्टिम है, हाँ, हम उससे मिले, उससे पूछे, ऑब्वियसली पुलिस आ ही सकती है। तो सोशल प्रेशर होता है कि भाई घर में पुलिस क्यों आई है।
हाँ, ये दो तीन रीजन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबके दिमाग में आता है, वो नहीं जाते। हाँ, मैं उनको बोलता हूँ, मेरा ये कहना होता है कि भाई अगर आपने किसी पे ट्रस्ट किया और उसने आपको इस तरह से धोखा दे दिया, तो इसमें गलती आपकी तो है ही नहीं है, आपने कहाँ गलत किया है? गलत उसने किया है इनफैक्ट। तो विक्टिम आप हुए, वो एक्यूज राइट। हुआ। तो आपको पुलिस के पास जरूर जाना चाहिए, जा करके अपनी एटलीस्ट एक सिंपल कंप्लेंट देनी चाहिए बिना डरे हुए। क्योंकि हमारे भारत में मोस्टली जो इस तरह से विक्टिम होते हैं, जो विक्टिम हो जाते हैं, जो फंस जाते हैं, जो मनी जिनके पैसे चले जाते हैं, वो अपने आप को एक्यूज समझ लगते हैं, उनको लगता है हम ही दोषी हैं, हम ही ने गलती करी है। मैं लोगों को बोलता हूँ भैया तुमने गलती नहीं करी है, आप तो विक्टिम हो, आप तो फंस गए हो। गलती जिसने करी है वो आराम से घूम रहा होता है। राइट। वो एक्चुअली उनको यही लगता है कि क्योंकि पुलिस वगैरह क्रॉस इंटेरोगेशन करते वक्त पूछेंगे जी आपने क्यों पैसे दे हम्म, दिए, आप तो समझदार लग रहे हो, आपकी कहाँ हम्म। से गलती हो। मे बी उस डर के वजह से भी उनको लगता है कि यार कैसे वो चीज एक्सप्लेन करेंगे कि हम लोग उस क्या स्टेट ऑफ माइंड में थे जब ये एक्शन हम ले रहे थे। तो उनके अंदर काफी ये चीज रहेंगी। बट इसके अंदर हमारा जो लॉ है, बिकॉज आपने जैसे कहा कि ये कंपनीज एक जो गवर्नमेंट लॉज के अकॉर्डिंग ही चलती है, इन्होंने अपने रूल्स इस अकॉर्डिंग ही बना रखे बिल्कुल। हैं। हमारा लॉ किस तरह से हमारी हेल्प कर सकता है कि वो विक्टिम्स की, बिकॉज विक्टिम तो फंस गया, ठीक है, आपने कुछ केस वो भी बताए थे कि आईपीसी लगते हैं 420 का और एक दो और। तो इसमें और डिटेल में अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि लॉ की हेल्प हम कैसे ले सकते हैं। हाँ, अब देखो इसमें किसी तरह का भी विक्टिम हो, मान लो साइबर फ्रॉड हो गया, या उसके साथ, एक मिनट, साइबर फ्रॉड हो गया या एमएलएम फ्रॉड हो गया, जब हो गया, जब उसको पता चलता है, वो पता देखो, पता तुरंत भी चल सकता है, पता 2 महीने बाद भी चल सकता है, पता 6 महीने बाद भी चल सकता है। जब वो अवेयर हो, जब वो समझना शुरू करे कि भाई इसमें तो सिर्फ पैसे जा ही जा रहे हैं, अर्निंग तो कुछ हो नहीं रही है, तो वो फिर सवाल पूछना शुरू कर देता है, और जब उसको जवाब नहीं मिलता है तो वो समझ जाता है कि सब कुछ गलत है और उसके साथ फ्रॉड हो चुका है। जिस दिन उसको समझ में आता है, उस दिन सबसे पहला काम ये करना चाहिए, नॉर्मली जो करते हैं लोग, मैं बहुत ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूं इस वक्त। और ग्राउंड रियलिटी ये नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे ही समझ में आया वो बंदा तुरंत उसके पास ही आता है जिसको उसने पैसे दिया होता है, जाकर के अपने पैसे मांगता है कि भाई मुझे नहीं करना यार, मुझे पैसे वापस कर दो। और ये कंटिन्यू होता है। हाँ, उसको बार बार बोलेगा, कभी नाराज हो जाएगा, कभी गुस्सा करके बात करेगा। हाँ, यही होता है हमारे देश में। नॉर्मली मैंने यही देखा है कि वो जा जाके मांगता है कि भाई मेरे पैसे दो, सोशल प्रेशर डालने की कोशिश करता है और लोगों से कहलवाता है। मैं बोलता हूं कि नहीं, ये गलत है, ये तरीका ही गलत है। आप क्या करो, सबसे पहले जो भी फ्रॉड में फंसता है, चाहे वो साइबर फ्रॉड हो, एमएलएम फ्रॉड हो, या किसी तरह के फ्रॉड हो, सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, उसको एक अच्छे तरीके से लिखना चाहिए। आप उसको, उस इंसिडेंस को आप अपने लैंग्वेज में लिखिए कि क्या हुआ है आपके साथ एग्जैक्टली exactly। ठीक है, और आप अपने केस को, जो आपके साथ जो घटना घटी है, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो ऑन द पेपर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये करोगे, मैं आपके सवाल में आ रहा हूं, आपके सवाल में आ रहा हूं। हम्म, हाँ, ठीक है, वो सही जब आप, है कि किस ठीक, तरह से हमें इसको हाँ, लेके चलना है। हाँ, तो आप जब लिख करके लेके जाओगे और पुलिस से मिलोगे, जब उनको बताओगे कि ऐसे ऐसे हुआ है, इन दैट केस पुलिस आपकी चीजों को देखेगी, पढ़ेगी, समझेगी, एंड देन फिर उस पे उसको जो भी करना होगा करेगी। यहां पे ही नहीं रुकना। अब देखो, लॉ यहां से आपको हेल्प करना शुरू किया, एक दो चीजें होंगी, या तो पुलिस आपकी बात सुनेगी ही नहीं, आपके एप्लीकेशंस को लेगी ही नहीं, आपको वापस कर देगी, 99% केसेस में यही होने वाला है। दूसरा, ले लेगी, कंप्लेंट ले लेगी और लेकर के बोलेगी कि ठीक है हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे एंड देन फिर हम इस पे कार्रवाई करेंगे। जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, वो आपकी कंप्लेंट को लेकर के गार्बेज बैग में फेंक देती है। मोस्टली पुलिस ऐसा करती है क्योंकि वो कोई प्रूफ नहीं रहता। यहां पे मैं एक नेक्स्ट लेवल की बात करता हूं, वो ये है कि व्हेन यू ऑब्जर्व कि यू हैव बीन चीटेड बाय समवन एल्स, नाउ गो टू द पुलिस। हाँ, गिव योर एप्लीकेशन। ठीक है, उनसे आप रिसीविंग लीजिए। आपको मिलेगी नहीं रिसीविंग, कोई बात नहीं, आप उनको दे दीजिए, और आ करके उसी को आप ईमेल कर दीजिए उनको, और उनको ही नहीं, हायर लेवल को। और फिर आप जाइए, उनके ऊपर के जो बॉसेस हैं, जो आईपीएस ऑफिसर्स, उनसे जाके मिलिए और उनको अपनी केस के बारे में बताइए। ये आपका प्रोसेस
तब तक चलते रहना चाहिए जब तक कि हायर लेवल में एस्केलेट ना हो जाए। अगर आप ऐसा करोगे देन फिर कानून जो है आपकी मदद करना शुरू करेगा। लेकिन सबसे पहले, जैसे ही आपको लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है, पैसे चले गए हैं और वो बंदा पैसे वैसे नहीं देगा, आपको पुलिस के जितने भी हायर अथॉरिटीज है उनके पास जा करके अपने केस को अच्छे से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एक बार नहीं, नंबर ऑफ टाइम। अब यहां पे दो चीजें हैं। वो ये है, एक बंदा तो थोड़ा सा मेल वेल में ज्यादा उसको इंटरेस्ट है, वो मेल के थ्रू चला जाएगा। दूसरा बंदे को जो होता है, जैसे बहुत सारे छोटे शहरों के लोग होते हैं, दे आर नॉट वेरी मच टेक सेवी, राइट। हाँ, उनको तो वो फिर उनको तो फिजिकली जाना पड़ेगा उनको। तो अगर उनको 10 बार भी जाना पड़े तो जाओ, एक बार आप वहां पे रिसीविंग ले लो, आईपीएस ऑफिसर से मिलो, एसपी से मिलो, हाँ डीसीपी से, एसीपी से मिलो, उनसे मिल करके अपनी बात बताए, फिर वहां से आपको कानून आपकी हेल्प करना शुरू करेगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है जो कि कोई भी कर सकता है। एंड यहां पे द थिंग इज कि आपकी लड़ाई, मैं बार बार लोगों को बोलता हूं कि आपकी लड़ाई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को समझाने में ही ज्यादा आपका जो स्टेमिना है वो हो जाएगा। उनको एक बार समझ में आ गया कि आपके साथ चीट हुआ है, देन फिर कानून आपकी हेल्प करना शुरू कर देगा। ये है प्रोसेस एक्चुअली। बट सर इस प्रोसेस से, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग जिस तरह से आप बता रहे हो, क्योंकि हाँ, हायर लेवल बिल्कुल। अथॉरिटीज पे रीच आउट करना ही बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम्म। अगर कोई बंदा एफर्ट डाल के एक एक्टिविटी या एक्शंस ले रहा है, तो कितने परसेंट चांसेस रहते हैं कि उसका जो मनी रिकवरी है वो हो जाए? हाँ, अब ये क्वेश्चन है मनी रिकवरी वाली बात। इस पे तो भाई, इस पे तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि अगर आप अपने पैसे को सच में इनसे वापस लेना चाहते हो तो आप ऐसे परसेंटेज या इसमें आप नहीं सोच सकते। आप तो पहले भूल ही जाओ कि आपके पैसे तो चले गए। अब आपको रिपोर्ट करना है, तो सबसे पहले हम्म। आप रिपोर्ट करो। अगर आप रिपोर्ट करने में, मतलब एफआईआर लॉन्च कराने में सक्सेस हो जाते हो, तो परसेंटेज आपकी बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि फिर पुलिस अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर डेफिनेटली उनके पैसे वापस आते हैं। अब जो साइबर फ्रॉड के केसेस होते हैं उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं। हालांकि अभी बहुत मतलब तेजी से काम हो रहा है साइबर फ्रॉड के ऊपर, बहुत साइबर क्राइम पुलिस बहुत तेजी से काम कर रही है और इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन इसमें चांसेस साइबर फ्रॉड जिनके साथ होता है, जैसे मेरे पास एक केस है, दिल्ली का ही है। हाँ, बंदे ने 27 लाख रुपए 15 दिन के अंदर क्रिप्टो करेंसी के नाम पे उससे लूट लिए गए। ठीक है। ओके। उसके बाद भी वो बंदा 3 लाख और उससे मांगा जा रहा था कि आप 3 लाख और दे दो तो आपको 1 करोड़ रुपए हम दे देंगे। और वो सारा कुछ फिजिकली नहीं हो रहा था, वो सब वर्चुअली दिख रहा था उसको। कोई ऐप था, उसी ऐप पे वो देखता था कि हाँ 1 करोड़ हो गए, हाँ 90 लाख हो गए। तो वो बोला था कि 3 लाख रुपए, तो इस तरह से वो 27 लाख रुपए ऑलरेडी दे चुका था। मेरे पास जब केस आया तो कैसे भी करके हम्म। उसकी एफआईआर लॉन्च कराई गई, लॉन्च हुई उसकी एफआईआर। और एफआईआर लॉन्च हुए कम से कम 9-10 मंथ हो गए हैं, और उसके बाद उसको अभी पुलिस ने करीब 2 या 3 लाख 3 लाख रुपए उसको रिकवर करके दे दिया। अभी और भी प्रोसेस में है। तो बहुत मुश्किल से हुआ, मतलब आप पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि भाई, आप देखो कि साइबर फ्रॉड हो गया, कहाँ पे बैठा है, किस बंदे को पैसा इसने दिया, उसको ढूंढ के लाना, वो पूरा गैंग बस करना पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अब एमएलएम फ्रॉड में भी ये ऐसे ही है, लेकिन एमएलएम फ्रॉड और साइबर फ्रॉड दोनों में डिफरेंस ये है कि साइबर फ्रॉड में सच में बहुत कम चांसेस होते हैं पैसे मिलने के, लेकिन एमएलएम फ्रॉड में अगर आपने सही तरीके से आपने प्रोसेस को फॉलो किया तो डेफिनेटली यू विल गेट बैक योर मनी। कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता, बट यू विल टेक हेल्प फ्रॉम द पुलिस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी विक्टिम्स। राइट। बिकॉज एमएलएम फ्रॉड में तो आई गेस ये चीज है कि आप ऑन ग्राउंड हो, यू नो द पर्सन की जिसने मेरे यू साथ नो करा द है, तो इट्स पर्सन, बिकम राइट, राइट। इजी है कि आप उसको रीच आउट कर लो। बट डिजिटल फ्रॉड्स आजकल बहुत हो रहा है, बिकॉज हम लोग देख रहे थे ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें हो रही हैं, या फिर मैट्रिमोनियल के नाम पे भी इस तरह के फ्रॉड्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो इसमें सर आई वुड लाइक टू नो फॉर माई पर्सनल इंटरेस्ट कि आप कोई एक ऐसा केस एक्सप्लेन करो जिसके अंदर आपको लगे कि यार ये तो बहुत ही एक्सट्रीम चीज है कि ये भी लोगों के साथ हुई है। बिकॉज आई हैव टॉक टू यू पर्सनली बिफोर दिस पॉडकास्ट, तो आपने काफी केसेस मुझे बताए थे कि जो अनइमेजिनेबल है, कि जो बंदा किसी भी तरह सोच भी नहीं सकता है कि यार मेरे बंदे के साथ या मेरे अपना बंदा ही कोई मेरे साथ इस तरह की हरकत कर सकता है।
तो अगर आपके पास कोई भी एक इंटरेस्टिंग हाँ, केस हो। ऐसा इंटरेस्टिंग बहुत सारे केसेस है, लेकिन जो मुझे जो लगता है जिसमें मैं सच में मैं बहुत लोगों को इसका एग्जांपल देता हूँ, ये हरियाणा का सॉरी राजस्थान का केस है। उसमें क्या हुआ था कि भांजे ने अपने मामा को एमएलएम फ्रॉड में कर लिया, मतलब उसके साथ, और जो मामा था वो एयरफोर्स में थे वो, राइट। ओके। जिस जिस बच्चे को उन्होंने बचपन से खिला, मतलब गोद में पल के पढ़ा, और होता है ना, बहुत क्लोज एकदम सगा मामा उनका, और उस भांजे ने बड़े होकर के अपने मामा को इस तरह ठग लिया, और जब मामा ने उससे पैसे मांगे कि भाई मेरे पैसे वापस करो, हाँ ये 10 लाख रुपए का केस था, तो भांजे ने मतलब उनकी बहुत हम्म। इंसल्ट करी और बोला कि तुम्हारे जैसे, मतलब एक डायलॉग उसने बोला कि तुम्हारे जैसे मामा मैंने बहुत देखे हैं। अब देखो हम्म। ये यहाँ पे डेफिनेटली इंसल्ट वाली बात थी, तो वो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और फिर बातें हुई, और उन्होंने सिर्फ एक ही बात मुझे बोली कि देखो पैसे तो जो गए वो गए, लेकिन मुझे अब इसको ये दिखाना है कि इसने जो इतनी बड़ी बात मुझे बोली, तो मुझे इसको दिखाना है कि भाई ठीक है, तुमने मेरे जैसे मामे बहुत देखे हैं, तो अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे होते हैं। तो ये एक प्रेस्टीज वाली बात हो गई थी, तो फिर उसकी फाइट वाइट हुई, काफी हुआ। 2 साल तक मैं उस चीज को करता रहा, एफआईआर लॉन्च हो गई, उनको लगता था कि कुछ भी नहीं होगा, फ्रीली घूम रहे थे वो, मतलब पूरी तरह से। तो एफआईआर हुआ, और फिर वो लोग, वो जो भांजा था वो लोअर कोर्ट में अपील किया, और लोअर लोअर कोर्ट से भी उसकी बेल रिजेक्ट हो गई, फिर वो हाई कोर्ट में गया, और हाई कोर्ट में भी उसका बेल एक्सेप्ट हुआ। लेकिन वहां पे जो मामा था, मैंने उनको बोला कि भाई आप क्या चाहते हो, और बताओ, अगर यहाँ पे आप लॉयर कर लेते हो तो फिर थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, उन्होंने लॉयर करी वहां पे, मैंने ही करवाई थी। और फिर ये हुआ कि भांजे को लग गया, तो उसको जेल होने वाली है अब, और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया वहीं पे। वो निकला हाई कोर्ट से, वहां पे भी रिजेक्ट हो गया, और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और उसको जेल में लॉकअप में डाल दिया। हम्म। अब बात आती है पैसे की। वहां पे उनकी मदर जो है वो, मतलब एक इमोशनल कि बेटा अंदर है, वहां पे उसने मुझे वीडियो कॉल कराई कराई और दिखाया कि देखो सर ये है। उसको बोला कि देख लिया ना मामे को। तो ये एक ऐसा केस था मेरे लिए, जो कि सच में इसमें इमोशन भी था, गुस्सा भी था। इमोशन ये था कि कोई भी मामा नहीं चाहेगा कि उसका भांजा लॉकअप में बंद हो जाए, जिसको उसने छोटेपन से गोद में खिलाया है। और इंसल्ट ये था कि ये मतलब बंदा इस तरह से मुझे इंसल्ट करेगा। तो उसके सारे पैसे रिकवर हुए, साथ में इंटरेस्ट भी लिया, बट उनके मतलब पूरी तरह से एक होता ही है, मन में खटास हो जाता है, तो बहन के साथ पूरी तरह से उनका रिलेशन एकदम क्लोज हो गया। और फिर उनको पैसे तो वापस मिल गए, लेकिन ये जो मतलब था एक पूरा इंसिडेंस, इसमें बहुत सारी चीजें हुई, वो उस पर अभी इतना मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन ये पूरा इंसिडेंस बहुत टचिंग था, और मेरे लिए भी बड़ा वो था, क्योंकि उसकी एज कितनी थी, 24 साल। हाँ, 23-24 साल थी भांजे की। और वो जो मामा थे वो एयरफोर्स में थे। मैंने हम्म। अपना वीडियो भी डाल रखा है इनके ऊपर। ये एक बहुत ही इमोशनल था, और एक ऐसे ही वेस्ट बंगाल का भी केस था, उसमें भी ऐसे ही था। काफी मुझे 1.5 ईयर आई थिंक लग गए। उसमें भी पैसे रिकवर हुए, लेकिन उसमें मैंने इंटरेस्ट भी दिया। और थर्ड एक जो बहुत ही इमोशनल केस था, वो सिंगल मदर थी, डिवोर्स का उसको पैसे मिला हुआ था चेन्नई का। और उसमें भी जो इन्फ्लुएंसर जो जिससे वो मतलब जिसने उसको फ्रॉड किया था, वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था, एंड वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल चेन्नई का। एफआईआर होने में ही उसमें केवल 2.5 साल लग गए, 2.5 years। कैन यू बिलीव दिस, एफआईआर लॉन्च कराने में। लेकिन हाँ ये है कि बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप पेशेंस होकर के अगर इनके साथ लड़ोगे, तो डेफिनेटली आपको पैसे आपके वापस मिलेंगे ही मिलेंगे। वो चाहे किसी भी तरह का फ्रॉड हो। आपका जो क्वेश्चन था कि कितने चांसेस होते हैं, हाँ मैं सबको यही बोलता हूँ, आपके व्यूअर्स को भी बोलता हूँ कि आप चांसेस परसेंटेज की बात ही मत सोचो। पहले तो आप ये सोचो कि कैसे इनसे फाइट करी जाए। हम्म। अगर आपको वो समझ में आ गई, हाउ टू फाइट विद देम, व्हाट इज द प्रोसेस, अगर आपको वो समझ में आ गई, तो पैसे भी आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल मिलेंगे, मैं बहुत श्योर हूं इसमें। राइट, बिकॉज सर 2.5 years बाद भी अगर किसी को पैसे मिल रहे हैं, जो हाँ, कि क्योंकि बंदा गिव अप कर चुका होता है कि भैया अब तो गए ही गए, अब कहाँ से उसका सोल्यूशन मिलेगा। तो डेफिनेटली देयर इज अ प्रोसेस एंड यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोसेस इन टर्म्स कि वो फाइट करोगे तो वो लंबा प्रोसेस है, बट आपको मिलेगा रिजल्ट।
तो सर इसमें एक चीज आपने और भी बोली कि जो बच्चा था वो अप्रोक्सीमेटली 23-24 ईयर्स का था, तो इसके अंदर जो बच्चे हैं जो अभी कह लो जॉब के लिए निकल रहे हैं, ठीक है, या फिर कॉलेज के बच्चे हैं, तो इनका आपने कितना परसेंटेज देखा है कि ये कॉलेज के बच्चे हो गए या फिर न्यू रिक्रूट्स हो गए या ग्रेजुएट्स हो गए, इस फ्रॉड में फंसते हैं वो भी लोग इस चीज में, बिकॉज दे आर मोर हाँ, वनरेबल। बिल्कुल बिल्कुल कोमल, इसमें ये एक बहुत चिंता वाली बात है। नॉर्मली ये जो बीटेक करके आते हैं, राइट, बीटेक में उनके, हाँ, 10 लाख 12 लाख रुपए खर्च हो चुके होते हैं और उनको अगर जॉब नहीं मिल रही होती है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं बीटेक एमटेक करने के बाद भी जॉब नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो बहुत कम सैलरी की मिलती है। अब होता क्या है कि उनको अगर ऐसे कोई विजनरी, ऐसे कोई दिखा दिया जाए, ड्रीम दिखा दिया जाए, तो वो बहुत इजीली ट्रैप हो जाते हैं, बहुत इजीली। और फिर से आते हैं हम पैसे की बात। अब होता क्या है कि अगर ऐसे स्टूडेंट्स जो सपोज करो बीटेक अभी कर रहे हैं, लास्ट ईयर है, और उनको अगर उनके फ्रेंड ने ही या उनके किसी रिलेटिव ने ही उसको इस तरह से एक सपना दिखा दिया कि भाई तुम उसके बाद नौकरी क्या करोगे, नौकरी करके तुम कितना कमा लोगे, तुम बिजनेस करो, बिजनेस। हाँ, और बिजनेस के नाम पे एमएलएम का फ्रॉड शुरू हो जाता है। हाँ, एक ऐसी ऐसी सामानें उनको बेच दी जाती है जिसका कि कोई वैल्यू ही नहीं है, और ऊपर से उनके पैसे इतने सारे लूट लिए, लूटना ही मैं बोलूंगा, बिकॉज जो ओवर प्राइस्ड होती है ना वो चीजें जिसकी जरूरत ही नहीं है। तो अब वो जो बंदे होते हैं उनको ये बताया जाता है कि आप बीटेक करके, या मान लो तुम्हारा कंप्लीट भी हो गया, किसी का इंजीनियरिंग कंप्लीट भी हो गया, जॉब वो ढूंढ रहा है तो उसको सैलरी उतनी नहीं मिल रही है, और अगर मिल भी रही है तो उसके जो खर्चे हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि आजकल आजकल सारे जो यंगस्टर्स हैं, हाँ, जो कॉलेज पास आउट होके आते हैं, उनको एप्पल का फोन भी चाहिए, हाँ, एप्पल का लैपटॉप भी चाहिए, ब्रांडेड कपड़े भी चाहिए, उनको मॉल कल्चर भी चाहिए, उनको मतलब बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ही बैठना है, बट वो सारे बिना मेहनत के बैठना है, उनको मेहनत करनी नहीं है। ठीक है, अगर उनका क्वालिफिकेशन देखा जाए तो जो जहां से उसने बीटेक किया है वहां का हो सकता है सबसे पुअर स्टूडेंट रहा हो, क्योंकि जो अच्छा स्टूडेंट है उसको इन चीजों में जाने की जरूरत ही नहीं है, उसको तो अच्छे सैलरी की जॉब मिल जाती है। बट ये जो मीडियोकर और पुअर स्टूडेंट्स होते हैं, समझ रहे आप, मीडियोकर या पुअर स्टूडेंट, जिनके पैसे तो उतने ही लगे हैं इंजीनियरिंग करने में, बट जब वो जॉब में जाते हैं तो हर जगह उनको चैलेंज मिलता है, उनको बड़े बड़े कंपनियों में एंट्री ही नहीं मिलती, या मिलती भी है तो उनको बहुत कम सैलरी में मिलती है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने जो कॉलेज से पास आउट हुए, उनकी जो पढ़ाई, एक्चुअल जो उनकी एजुकेशन थी, वो एजुकेशन प्रॉपर हुई ही नहीं है वहां पे, वहां पे वो पुअर स्टूडेंट कहलाते थे या मीडियोकर कहलाते थे। तो ऐसे लोगों को वही 30 40 35 की जॉब मिलेगी स्टार्टिंग में। हमारे कंट्री में आज भी ऐसे ही है, या तो आप दिल्ली एनसीआर छोड़ करके कहीं और जाते हो, वहां पे भी आपके खर्चे तो उतने ही हो जाएंगे, अगर मान लो वहां पे 50,000 भी मिल रहा है सैलरी पर मंथ, बट आपके खर्चे तो कुल मिला के तो आपकी वही बात रह गई। अब होता क्या है, ऐसे लोग बहुत जल्दी स्टूडेंट्स ट्रैप में आ जाते हैं, और इस तरह से ट्रैप में आते हैं। अच्छा, इस तरह के स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर में, कहीं के भी हों वो, मैं आपको बता रहा हूं नॉर्थ ईस्ट में भी, इवन मेघालय, शिलोंग, इन सब जगहों पे भी, वहां पे भी जो, वहां पे तो मतलब ग्रेजुएशन कर भी रहा है बंदा, और ग्रेजुएशन करते करते वहां पे ट्रैप में आ जाते हैं। ओके। हाँ, और ये आप सोचो कि उनके पास पैसे कहां से आते हैं। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि पैसे कहां से आते हैं, क्योंकि वो तो अभी जॉब कर ही नहीं रहा है भाई। 6 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए अगर मान लो कहीं पे कोई मांग रहा है, स्टेट्स भी नहीं है वो, वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी इतना नहीं है। नहीं है, तो हाँ। होता क्या है कि वो लोग फिर अपने पेरेंट्स पे दबाव देना शुरू करते हैं कि भाई हम बिजनेस कर रहे हैं, आप हमें पैसे दे दो, और कैसे भी करके दो पैसे, हम बिजनेस कर रहे हैं। अब पेरेंट्स पूछते हैं क्या बिजनेस कर रहे हो, अरे बताएगा तब तो जब उसको खुद पता होगा। तो वो क्या करता है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, वो क्या बोलता है कि नहीं, मतलब मेरा फ्रेंड देखो उसने ये करा, और देखो 2 बार फॉरेन हुआ या मीटिंग में, हाँ, बड़े बड़े जगहों पे घूमता है वो, अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनता है, बहुत अच्छे पैसे कमाता है, वो सिर्फ वो दिखाता है, ये नहीं बताता वो कि एक्चुअल में बिजनेस क्या है। हम्म। ठीक है। अब सही मम्मी पापा को वो पूरी तरह से पीछे पड़ जाते हैं, तो क्या होता है कि मम्मी पापा भी कहीं से लोन लेते हैं, हाँ, हम्म। लोन लेकर के दे देते हैं बच्चे की भलाई के लिए, तो भाई पेरेंट्स सब कुछ करने को तैयार है, बस ट्रैप में आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस, ये गेम चलता है। तो स्पेशली जो मैं क्यूनेट क्यूनेट बार बार बोल रहा हूं, ये क्यूनेट भी ऐसे ही कर रहा है ऑल ओवर इंडिया में। अब वो लोगों को इस तरह से फंसा रहा है, इस तरह से ट्रैप में ला रहा है कि अगले बंदे को पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो फंस गया है।
उसको पता तब चलता है जब वो देखता है कि यार ये 1.5 लाख की घड़ी पहन के मैं मेरे पास आ गई, हाँ, या मेरे पास वो डिनर सेट आ गया 2 लाख रुपए का, जिसकी हम्म, जरूरत ही नहीं थी। हाँ, अब मेरे पास एक विक्टिम है, वो जर्मनी के हैं, सरदार जी हैं वो जर्मनी में रहते हैं, बहुत सालों से रहते हैं, राइट। अब उन उनका किसी के साथ फ्रेंड हुआ, वो लड़की वो हरिद्वार की है, उसने क्या किया, उसने क्यूनेट में फंसा दिया और वो पैसे दिया उनके पास, वो सामान्य आ गया घर में। अब वो बंदा जो जर्मनी में है, उसको ये सब सामानों की क्या जरूरत। ठीक है, जब उनको समझ में आया तो कांटेक्ट किया उन्होंने मुझे, फिर एफआईआर हुई, एफआईआर लॉन्च होगी, उसके नाम से वारंट इशू हो गया उस लड़की के नाम से। चल रहा है अभी भी, अभी उनको मिला नहीं है, बट होपफुली मिल जाएगा। इस तरह से तो चीजें ये चीज, होती हैं। हाँ, इतनी फैली हुई है कि वो लोग एनआरआईज को भी ट्रैप करना शुरू कर चुके हैं इस चीज में, हाँ बिल्कुल। कि इंटरस्टेट। तो इसमें ऐसे हमारे लिए लीगली इशू नहीं होता कि अगर हम लोग इंटर कंट्री वो चीज हो रही है कि अगर कोई यहाँ का इंडिया का बंदा बाहर बैठा है, उसके साथ फ्रॉड हुआ है, क्योंकि ओरिजिन ऑफ फ्रॉड तो आई गेस इंडिया ही रहेगा, हाँ, बट उसके लिए वो चैलेंजेस नहीं रहेंगे कि वो वहां बैठा है, उसको कैसे उसने ट्रांसफर करे, क्या इशू आया, तो उसमें आप किस तरह के चैलेंजेस देखते हो जब इंटर कंट्री फ्रॉड्स हो रहे हैं इस चीज में? नहीं देखो इसमें, हाँ आपने सही पूछा, इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कोई एनआरआई है, राइट, और उसको इस तरह से ट्रैप में ले लिया गया, पैसे तो वो ऑनलाइन ही ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। अब जब उसको पता चलता है, चैलेंजेस क्या होता है कि कोई एक उसका बंदा यहाँ पे होना चाहिए फॉलो अप के लिए, क्योंकि पुलिस का हमारा जो पुलिसिंग सिस्टम है ना, उसमें अगर आप कोई एफआईआर लॉन्च कराते हो तो ऑलवेज वो सामने बुलाते स्टेटमेंट के लिए, समझ रहे, तो अब उसके लिए चैलेंज ये होता है कि उसको आना पड़ेगा। लेकिन मेरे मोस्टली केसेस में क्या होता है कि वो एक अथॉरिटी लेटर अपने भाई को या अपने पेरेंट्स को दे देता है कि भाई हम इनको देते हैं, हाँ, अपना एक अथॉरिटी लेटर मेरे बिहाफ पे, ये आपके सामने जाएंगे, और बाकी मैं अगर वीडियो कॉल पे अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियो कॉल पे अवेलेबल हूँ, तो इस तरह से चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है। तो पुलिस को स्टेटमेंट चाहिए होता है बेसिकली, और स्टेटमेंट मिल जाता है, और एक बंदा फॉलोअप के लिए अगर होता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एफआईआर लॉन्च हो जाती है। तो कोई इसमें इतना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता। ओके। हम्म। बट एक बंदा होना चाहिए फॉलोअप के लिए, कोई एक होना चाहिए। तो सर, एज पर जो कम्युनिकेशन, हमारा जो डिस्कशन रहा है इस पे बहुत फ्रूटफुल रहा है, एंड आई होप कि इसकी हम लोग अवेयरनेस जो है, हम इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, ताकि लोग इस बारे में जान सके कि किस तरह से सिर्फ क्यूनेट नहीं, और भी जो एमएलएम और भी कंपनीज एमएलएम होती हैं वो किस कंपनीज, तरह से हाँ। ट्रैप करती है, कि आपका एक और भी है, और मेन जो उनका फोकस ये रहता है कि वो आपके किसी नोन बंदे के थ्रू, आपको कोई नोन बंदा आपको मैसेज कर देगा, आपका स्कूल फ्रेंड हो सकता है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कि ये ने मैं इतनी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, तो तू भी इसको ज्वाइन कर ले। तो दैट इज द फर्स्ट लेवल जहाँ पे आपको थोड़ा सा अटेंटिव हो जाना चाहिए कि ये शायद पॉसिबिलिटी है कि ये फ्रॉड इस तरह से हो सकता है। फॉर विक्टिम्स आई वुड से कि आपको शायद बहुत सारा क्वेश्चंस पूछने चाहिए बिफोर गिविंग योर मनी टू एनीवन, कि यार किस तरह का है, क्या है, कोई डॉक्यूमेंटेशन दो कंपनी की, या फिर कोई सर्टिफिकेशंस हो। आपका इसके अंदर क्या ओपिनियन रहेगा, आप क्या एक लास्ट मैसेज अपने हमारे जो व्यूअर्स हैं या जो विक्टिम्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे, कि या तो वो इस ट्रैप में ना फंसे, और फंस गए हैं तो ऑब्वियसली आपने काफी स्टेप्स बता दिए हैं, बट उनके लिए भी एक पॉइंट की क्या चैलेंजेस। हाँ, मेरा लास्ट, जैसे कि इतना डिस्कशन हुआ, मैं कुछ एक बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे फॉर समराइज बता देता हूँ। पहली चीज, ये मैं साइबर फ्रॉड वालों के लिए बता रहा हूँ कि पहली चीज ध्यान में रखिए, किसी भी तरह का कोई लिंक आप कभी भी क्लिक मत करिए, कुछ भी हो जाए, या किसी भी तरह का लोन एप्स जो आपके मोबाइल पे मैसेज में आता है उस पे आप जाइए ही मत। कहने का मतलब है कि लोन अगर आपको सच में चाहिए तो आप, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द बैंक। किसी तरह का लिंक या किसी तरह की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपके पास बार बार मैसेजेस आते रहते हैं, उस पर आप जाइए ही नहीं, वो सब के सब फर्जी है, फेक है। ये तो साइबर फ्रॉड की हो गया। सेकंड, एमएलएम में अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है, कोई भी मांग रहा है, और आरबीआई का बहुत क्लियर कट गाइडेंस है कि कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई इस तरह से अगर आपको सपने दिखा रहा है तो आप बिल्कुल कमा नहीं सकते हो, वो झूठ है। तो अगर मान लो कि आपसे कोई भी पैसे मांग रहा है,
बिफोर गिविंग द मनी आप 100 बार सोच लीजिए कि आप वो जो पैसे दे रहे हैं किस चीज के लिए दे रहे हैं आप, राइट। और वो पैसे अगर आपके पास सेविंग है, सेविंग आपकी खुद की पैसे है, तब भी आप 100 बार सोचिए कि आप किसको पैसे दे रहे हैं और किस चीज के लिए दे रहे हैं। अगर आपने ये सोच लिया तो आप कभी भी आपके साथ धोखा नहीं होगा। और फिर भी अगर आपने पैसे दे दिए, तो फिर आप सीधे सीधे, अगर आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हो गया, तो आप पुलिस को कंप्लेन कीजिए। सिंपल एक कंप्लेन लेटर लिख करके पुलिस को दीजिए। नहीं लेती है, उनको मेल कर दीजिए। आपके पास एक एविडेंस हो जाएगा कि हाँ आपको पता चला और आपने पुलिस को कंप्लेन कर दी। कुछ एक बातें हैं वो हमेशा आपको बहुत बहुत बी केयरफुल रहिए उसमें, कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, लिंक्स आती है, इस पे आपको गलती से भी क्लिक नहीं करना है। और अपने ट्रस्टवर्दी आकर के अगर आपको बहुत ही ड्रीम दिखा रहे हैं, तरह तरह की बातें बोल रहे हैं और क्लियर कुछ नहीं होता है, इलॉजिकल बातें कर रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि ये एक ट्रैप है। Right. So, thank you so much, sir, for today's podcast. And definitely, we have encountered some very eye-catching और फिर कह सकते हैं ना, बहुत ही आई ओपनिंग आपने बहुत चीजें हमें बताई हैं केसेस को लेके किस तरह से फ्रॉड होता है। सो टुडे सेशन वाज ऑन एमएलएम फ्रॉड एंड वी वुड बिलीव कि आप दोबारा हमारे चैनल पर आए तो जो बाकी टाइप के फ्रॉड हो रहे हैं जैसे बैंक फ्रॉड्स कह लो, ठीक है, हम्म। आपका एमएलएम सॉरी, जैसे अभी डिजिटल अरेस्ट के ऊपर किसी इन्फ्लुएंसर के साथ हुआ था तो उसके ऊपर है। तो हम लोग उस चीज के बारे में और डिस्कशन करेंगे ताकि हम लोग और इस चीज की अवेयरनेस, चीजों में ट्रैप हो और इन कंपनीज को इतना बूस्ट ना मिले, ताकि जो इंडिया का हार्ड एंड मनी है, यूथ का हार्ड एंड मनी है, वो सेफ रहे और अच्छी चीजों में लगे। ठीक है। सो आई थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ कैंपस वार्ता टीम एंड एवरी व्यूअर ऑफ आवर्स टू come on our podcast and enlighten us about this topic. थैंक यू कोमल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। ओके।